गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में काफी सारे सम हमने पढ़े थे। ओके, एक्सरसाइज 7.2 के 1 to 22 खत्म हो गए हैं। ओके, बहुत अच्छी तरह से चैप्टर चल रहा है। शायद आपको इजी भी लग रहा होगा क्योंकि आपने सारे फॉर्मूला अगर कंप्लीट कर दिए हैं तो ये चैप्टर में दिक्कत आने वाली नहीं है और थोड़े से आइडिया। अभी 7.2 में टोटल 39 सम है और बहुत ही इजी सम है। चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 सम नंबर 23। I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पे क्या एज्यूम करेंगे तो आपको शायद पता चल गया होगा कि साइन इनवर्स x को एज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ऑलरेडी यहां पे है जो कि 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पे मैं एज्यूम करूंगा सपोज साइन इनवर्स x इक्वल टू t। नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विच इज 1 अपन अंडर रूट 1 minus x square dx equal to dt. Now I substitute all value. Sin inverse x that is t and dx upon under root 1 minus x square that is dt means t into dt. Now integration of t, we know that 1 power is 1, that it is t square divided by 2 plus c. Now I put value of t that is sin inverse x means I equal to sin inverse x whole square divided by 2 plus. Now I take next sum of 7.2 that is 24. Okay, यहाँ पे मैं 24 स्टार्ट करता हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया सम है। I equal to इंटीग्रेशन न्यूमरेटर 2 cos x minus 3 sin x in denominator 6 cos x plus 4 sin x dx। ओके, यहां पे देखो डिनोमिनेटर में से मैं पहले 2 को कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x minus 3 sin x and in denominator 2 common then 3 cos x plus 2 sin x dx. See here, now take derivative of denominator then 3 as it is, derivative of cos function which is minus sin x, then derivative of 3 cos x which is minus 3 sin x and derivative of 2 sin x that is 2 as it is and derivative of sin x that is cos x. That means derivative of denominator is numerator. तो यहां पे मैं एज्यूम करूंगा डिनोमिनेटर इक्वल टू सम वेरिएबल t। ओके, देखो यहां पे सपोज क्या एज्यूम करूंगा 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t। 3 as it is. Now derivative of cos function is minus sin x plus 2 as it is, derivative of sin function is cos x dx equal to dt. See here, minus 3 sin plus 2 cos x dx which is our numerator. Then I put numerator equal to only dt and denominator equal to, we have to assume t, then I equal to dt by t and integration of 1 upon t that is log modulus of t plus c equal to log. Now I put value of t that is 3 cos x plus 2 sin x plus c. Now I take next example of 7.2 that is 25 which is very easy. I equal to integration dx upon cos square x into bracket 1 minus tan x whole square. अब हम जानते हैं कि 1 जो है उसका डेरिवेटिव 0 आने वाला है और tan फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर्मूला है sec स्क्वायर x, लेकिन यहां पे कहीं भी sec स्क्वायर x नहीं दिखाई देता, लेकिन है कहां पे तो 1 by cos square x that is sec square x, then I write sec square x dx in denominator 1 minus tan x whole square. Now I assume 1 minus tan x equal to t. Then suppose
1 minus tan x equal to t. Now derivative of 1, that is 0, and derivative of minus derivative of tan, which is sec square x dx equal to dt. That means sec square x dx equal to minus dt. Now I put all the value in I, and I equal to integration. See here, sec square x dx, that is minus dt. In denominator 1 minus tan x, that is t square, minus as it is take t square in numerator, we get t raised to minus 2 dt. Now integration of t raised to minus 2, then we use formula of x raised to n, integration of x raised to n, which is x raised to n plus 1 upon n plus 1. Okay, then here t raised to minus 1 upon minus 1 plus c equal to minus 1 by t plus c. Now I put value of t, that is minus 1 upon t, means 1 minus tan x plus c, which is our final answer. Okay. अब मैं अगला सम लूंगा 26 नंबर का, वो भी बहुत ही इजी है. 26 I equal to integration cos root x in denominator root x dx. तो यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, ऐसी टर्म एज्यूम करनी है जिसका डेरिवेटिव भी इसमें जो फंक्शन दिया गया है उसमें दिख रहा हो. तो हम एज्यूम करेंगे रूट एक्स क्यूब. तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपन 2 रूट एक्स. ओके, 1 बाय 2 रूट एक्स. यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करूंगा 1 बाय 2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt. नाउ दिस टू टेक ऑपोजिट साइड, देन इन मल्टीप्लिकेशन we get dx by root x equal to 2 into dt. Now I substituted all the value in I, then I equal to integration. See here, cos root x, but root x equal to t means cos t, and dx upon root x equal to 2 into dt. To outside integration of cos t, integration of cos t, which is plus sin t plus equal to 2 sin. Now I put value of t, that is root x plus c. Okay, तो ये सम हमारा खत्म हो गया. अब मैं अगले सम लेता हूं जो कि है 27 नंबर का. वो भी इजी है, देख के ही पता चल जाएगा कि क्या एज्यूम करना है. तो 27 I इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx. क्या एज्यूम करेंगे, तो ऑब्वियस साइन फंक्शन को ही एज्यूम करना होगा. क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव यहाँ पे है. तो आप बोलोगे सर cos का डेरिवेटिव भी है यहाँ पे, तो cos फंक्शन का डेरिवेटिव मैं करूंगा तो हो जाएगा माइनस साइन 2x, लेकिन साइन 2x कहाँ पे है, इन डिनोमिनेटर. ओके, यहाँ पे पावर क्या होगी 1/2, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं एज्यूम करूंगा साइन 2x इक्वल टू t. Now sin 2x equal to t, then derivative of sin, which is cos 2x dx, and derivative of 2x, that is 2, equal to dt. Means cos 2x dx equal to dt by 2, and cos 2x dx equal to dt by 2. Now I put all value in I, then I equal to integration cos 2x equal to t, that means under root t, means we write as t raised to 1/2 and cos 2x dx, which is dt by 2. ओके, तो 1/2 यहाँ पे मैं बाहर ले लेता हूं और t raised to 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा. और t raised to 1/2 का साइन इंटीग्रेशन आपको मालूम हो जाएगा. क्या होगा 1 power 1, that means 1/2 plus 1 means t raised to 3/2. See here, I equal to, now I put all value and integrate 1/2 outside, and integration of t raised to 1/2, that is 3 raised to 3/2 upon 3/2 plus 2 cancel. Now I put value of t, that is sin 2x, means यहाँ पे हो जाएगा 1/3 sin 2x whole raised to 3/2 plus c, which is our answer. Now I take next sum, that is 28. Okay, 28.
और 28 के जैसा ही 30 नंबर का है, वो सम मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। देखते हैं 28 I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपन अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx। क्या करेंगे? तो शायद आपको पता चल गया होगा कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव है न्यूमरेटर। That means we assume 1 plus sin x equal to t. Now derivative of 1 which is 0 and derivative of sin function which is cos x dx equal to dt. तो यहाँ पे जो cos x dx है उसकी जगह पे मैं लिख लूंगा dt। तो यहाँ पे क्या होगा I equal to integration in numerator dt and in denominator under root 1 plus sin, that means root t. Now under root t take in numerator we get t raised to minus 1 by 2 dt and t raised to minus 1 by 2 which is our, then integrate this term, that means x raised to n, we use formula x raised to n plus 1 upon n plus 1। तो यहाँ पे 1 power more t raised to minus 1 by 2 plus 1 is t raised to 1 by 2 in denominator 1 by 2 plus 2 take in numerator then 2 and t raised to 1 by 2, that means under root t and we write t equal to 1 plus sin x then root 1 plus sin x plus c which is our answer। Now I take next sum। देखो यहाँ पे नेक्स्ट सम कौन सा है, जो कि है 29 नंबर का और बहुत ही इजी है। 29 I इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x into log sin x dx। तो यहां पे क्या एज्यूम करेंगे? देखो यहाँ पे log sin x का डेरिवेटिव करो, log sin x डेरिवेटिव ऑफ log sin x which is 1 upon sin into derivative of sin function which is cos, and derivative of log sin x which is cos upon sin that is cot x। तो यहाँ पे ऑलरेडी cot x हमको दिया गया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा log sin x equal to t। तो सपोज log sin x equal to t, now derivative of log sin which is 1 upon sin x into derivative of sin function is cos x dx equal to dt। Now see here cos upon sin that is cot x dx equal to dt। Now I put all value in I, means यहाँ पे क्या हो जाएगा log sin x की जगह पे मैं लिख लूंगा t और cot x dx that is dt। Now integration of t where is it? Integration of t that is t square by 2 plus c then 1 by 2 as it is। Now I put value of t that is log sin x whole square divided by 2 plus। ओके तो 29 नंबर का सम ये खत्म हो गया। अब 30 नंबर जो कि मैं होमवर्क में देने वाला हूं, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है I इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x अपन 1 प्लस cos x dx। ओके जो कि होमवर्क में है। तो यहाँ पे क्या एज्यूम करोगे? ये सम सेम कौन से जैसा है? 23 नंबर का जो सम हमने लिया था। ओके नहीं 23 नंबर नहीं, ये सम आगे आ चुका है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे 28 के जैसा है। देखो यहाँ 28 में क्या है? cos x अपन अंडर रूट 1 प्लस sin x, तो सिर्फ उसके जैसा ही सम है। तो यहाँ पे एज्यूम आप कर लो 1 प्लस cos x इक्वल टू t एंड डेरिवेटिव cos व्हिच इज माइनस sin x dx। तो इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो ये सम मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूं। ओके चलो बच्चों, अब मैं अगला सम लेने जा रहा हूं जो कि है 7.2 और सम नंबर है 31, जो कि मैंने आपको 30 नंबर का सम होमवर्क दिया है उसके जैसा ही बिल्कुल है। तो 30 नंबर का हमारा सम क्या था? sin x अपन 1 प्लस cos x ओनली, और यहां पे क्या है? 1 प्लस cos x होल स्क्वायर, सिर्फ इतना ही चेंज है। तो यहां पे क्या करेंगे? तो डिनोमिनेटर 1 प्लस cos x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो माइनस sin x dx। तो हम एज्यूम करेंगे 1 प्लस cos x इक्वल टू t। यहां पे मैं एज्यूम करूंगा सपोज
1 plus cos x equal to t. Now derivative of 1, that is 0, and derivative of minus cos function, which is minus sin x dx equal to dt. Now minus take opposite side, then sin x dx equal to minus dt. Now I substitute all value in I, then I equal to integration. See, in numerator sin x dx, that is minus dt. In denominator 1 plus cos, that is t. तो यहाँ पे हो जाएगा t square minus I take outside t square, taking numerator, that is t raised to minus 2 dt. Now integrate t raised to minus 2 gives t raised to minus 1 divided by minus 1 plus here minus minus plus 1, okay, and 1 by t raised to minus 1, that is 1 by t plus c. Now I put value of t, that is 1 plus cos x, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 upon 1 plus cos x plus c, which is our final answer. Now I take next sum of 7.2, that is 32. बहुत ही ज्यादा अच्छा सम है, ओके, तो ये मैं सम बाद में लेता हूं, पहले मैं 35 नंबर का सम कंप्लीट कर देता हूं, ओके। तो 35 नंबर ऑफ 77.2, यहाँ पे 35 नंबर का क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस log x होल स्क्वायर डिवाइड बाय x dx। तो यहाँ पे देखो बहुत ही इजी है, आपको पता चल गया भी होगा क्या एज्यूम करना है। तो 1 का डेरिवेटिव 0 है और log x का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय x। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज 1 प्लस log x इक्वल टू t. नाउ डेरिवेटिव ऑफ 1 विच इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज 1 बाय x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 1 प्लस log x दैट इज t स्क्वायर and dx by x, that is dt. Now integration of t square, which is t cube by 3 plus c. Now I put value of t, which is 1 plus log x whole cube plus, which is our final answer. Now I take very important sum, okay, sum number 32 of 7.2. I equal to integration dx upon 1 plus cot x. तो यहां पे तो कुछ होने वाला है ही नहीं, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन हम जानते ही नहीं। 1 upon 1 plus cot x का क्या करेंगे, तो फर्स्ट कन्वर्ट cot x into sin cos, then I equal to integration dx upon 1 plus cot, that means cos upon sin. Okay, now taking LCM, then sin x multiply with 1, and from denominator sin x taking numerator, that means in numerator sin x dx, in denominator sin x plus cos x. तो अब यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे तो डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव करो। तो डिनोमिनेटर में साइन फंक्शन का डेरिवेटिव cos, वो तो कहीं भी नहीं है न्यूमरेटर में, लेकिन cos फंक्शन का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। ओके, तो न्यूमरेटर में कुछ साइन जैसा दिखता है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसके जैसे ही टर्म में न्यूमरेटर में लाता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, देन 2 sin x अपन sin x प्लस cos x dx। तो ये देखते रहो यहाँ पे क्या होने वाला है। तो डिनोमिनेटर में साइन प्लस कॉस है, तो 2 टाइम साइन एक्स है, तो 1 टाइम मैं लिख लेता हूं, और 1 टाइम कॉस फंक्शन मैंने ऐड किया। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन प्लस कॉस है, तो ये डिनोमिनेटर के जैसा ही फंक्शन हमको मिल गया है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस, और कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन। तो यहाँ पे cos फंक्शन को एक बार मैंने ऐड किया, तो सब्ट्रैक्ट तो करना होगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा माइनस cos फंक्शन एंड विच इज डेरिवेटिव ऑफ sin फंक्शन, एंड डेरिवेटिव cos विच इज माइनस sin। सी हियर, ब्रैकेट खोल दो, तो यहाँ पे क्या होगा, sin प्लस cos माइनस cos कैंसल, और माइनस माइनस प्लस sin, दैट मींस 2 sin x। तो सिर्फ न्यूमरेटर में
हमने थोड़ा अरेंजमेंट किया है, cos फंक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, तो अब क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन sin प्लस cos अपन sin प्लस cos दैट इज 1 माइनस cos x माइनस sin x अपन sin x प्लस cos x dx। अब इसको मैं अलग कर देता हूं, 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x इन डिनोमिनेटर sin x plus cos x dx. See here. Now as denominator equal to some function t. Okay. So suppose sin x plus cos x equal to मैंने t assume कर दिया। अब डेरिवेटिव करूंगा, sin फंक्शन का डेरिवेटिव होगा cos और cos फंक्शन का हो जाएगा माइनस sin x dx equal to dt, which is our numerator cos x minus sin x dx. Which is our numerator, then we write numerator equal to dt. Now see here, I equal to our first term is 1/2 integration 1 dx minus 1/2. Now I substitute always numerator equal to dt and denominator equal to t. Okay, अब तो बहुत ही इजी हो गया। अब मैं डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन t दैट इज log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस c. नाउ आई पुट वैल्यू ऑफ t दैट इज log मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ t, तो t हमने क्या एज्यूम किया था, sin प्लस cos x, तो यहाँ पे sin x प्लस cos x प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो गया 33 नंबर सेम 32 के जैसा ही है, तो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, ठीक है। ओके, अब मैं अगला सम लूंगा जो कि बहुत ही इजी सम है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि 34 नंबर I इक्वल टू इंटीग्रेशन इन न्यूमरेटर रूट 10x and in denominator sin function into cos function dx. अब हम जानते हैं कि sin फंक्शन tan फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो होगा sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे तो कहीं भी sec स्क्वायर x नहीं दिखाई पड़ता, तो क्या करेंगे देखो, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x as it is in denominator sin x here. Now divide by cos x and multiply by cos x. ओके, तो यहाँ पे तो एक बार cos फंक्शन है ही, दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। तो इंटीग्रेशन न्यूमरेटर रूट 10x as it is c in denominator sin by cos that is 10x into cos square x dx. Here root 10x upon 10x raised to 1, रूट 10x अपन 10x रेज़ टू 1, तो यहाँ पे दोनों टर्म ओके परसेंट फॉर्म में है, तो यहाँ पे पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और cos स्क्वायर को मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा रूट 10x। तो क्या एज्यूम करूंगा मैं, 10x क्यूब, तो कि 10x का डेरिवेटिव यहाँ पे है sec स्क्वायर x dx, तो यहाँ पे मैं एज्यूम करूंगा सपोज 10x equal to t. Now derivative of tan function which is sec square x dx equal to dt. तो यहाँ पे मैं न्यूमरेटर इक्वल टू dt लिख दूंगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट t। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं now I substitute all value in numerator sec square x dx that is dt, in denominator under root t that means t raised to 1/2. Now t raised to 1/2 I take in numerator and integration t raised to minus 1/2. Now integration of t raised to minus 1/2 that is 1 power more t raised to minus 1/2 plus 1 plus 1/2 upon plus 1/2 plus these two take in numerator t raised to 1/2 that is under root t. But we assume t equal to 10x, then I put t equal to 10x means root 10x plus
तो ये हमारा सम खत्म हो गया 34 नंबर का। ओके, नेक्स्ट सम 35। ओके, क्योंकि 35 हमने कंप्लीट कर दिया ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट सम दैट इज 36, क्योंकि i इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू ब्रैकेट x प्लस लॉग x होल स्क्वायर डिनोमिनेटर x dx। तो यहां पे देखो हम x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 मिलेगा, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। तो यहां पे तो कहीं भी 1 प्लस 1 अपन x नहीं है, तो ये x है, इसको ये ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में ले लेता हूं तो x प्लस 1 अपन x हो जाएगा इंटू x प्लस लॉग x होल स्क्वायर dx। अब यहां पे स्प्लिट करो तो क्या होगा, x बाय x दैट इज 1 प्लस 1/x इंटू ब्रैकेट x प्लस लॉग x होल स्क्वायर dx। नाउ I assume x plus log x. Why? Because derivative of this function is this bracket. Now I assume suppose x plus log x equal to t. Now derivative of x that is 1 and derivative of 1 upon x which is 1 upon x dx equal to dt. Okay, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और log x का डेरिवेटिव जो कि है 1/x dx। तो यहाँ पे 1 प्लस 1/x dx इक्वल टू dt में रख दूंगा और यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है x प्लस log x, तो उसकी जगह पे मैं रख दूंगा t। तो यहाँ पे हमारा i हो जाएगा अब t स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपन x dx इक्वल टू dt। तो t स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, तो t क्यूब बाय 3, तो t क्यूब बाय 3 प्लस देन 1/3 एज इट इज। Now I put value of t that is x plus log x whole cube plus 6। अब नेक्स्ट सम जो कि है 33 नंबर का, जो मैंने आपको होमवर्क में देने वाला हूं 33। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपन 1 माइनस tan x। ये सम होमवर्क में कैसा है, तो tan x को पहले क्या करना होगा, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा, सेम 32 के जैसा ही है। ऐसे हम लोग बाद में जो डिनोमिनेटर में है वही टर्म हमको न्यूमरेटर में लानी है, और दूसरी टर्म क्या लानी है, जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव बाद में स्प्लिट करो, एज्यूम करो और आंसर लाना होगा आपको उस तरह से। ओके, तो इस लेक्चर में हम यहां तक रखते हैं, अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ओके।